Hello and Assalamu alaikum, third year. I hope you're all doing well and everyone, including you and all the others around you, are enjoying good health and are safe. Best wishes to all of you. And can you hear me? ये इनका बंद होता है ना? Uh, yeah. Okay. Uh, the topic which we are going to discuss today is acute appendicitis. It is one of the more important topics which you will come across as students of surgery in final year, even in fourth year. And from it's an even it has two importance that number one is that these are the cases which you frequently come across in your accident and emergency department, because usually appendicitis has an acute presentation, and most of the admissions done for acute appendicitis are through emergency, and these are frequently encountered cases. The other important feature of acute appendicitis is from the examination point of view. It's from examination standpoint, it's an important topic, whether it is for the written or for the oral examination or for the clinical examination. So what we will be discussing uh, in acute appendicitis is how do the patients of acute appendicitis present, what is the epidemiology and its pathophysiology, and how to evaluate a patient when he comes with acute abdomen. Because obviously appendix being an intra-abdominal structure, there are many other organs within the peritoneal cavity, and you have to differentiate between certain illnesses according to certain salient features of each disease. And so our objective will be to diagnose it, and we can only diagnose it once we know the differential diagnosis of the cases, and then obviously how to investigate and further treat the patient. Okay, so definition. Whenever the term itis is used, itis stands for infection, appendicitis, pancreatitis, cholecystitis. So all these itis represents usually acute inflammation of that particular organ. So appendicitis stands for acute inflammation of the appendix, which is known as acute appendicitis. And it occurs obviously when there is inflammation within the appendix, and it has variable presentations depending upon the severity and the time elapsed between the first symptoms and the time the patient presents to you in the hospital. So coming to the epidemiology, it accounts for 2% of all hospital admissions. So you can imagine it is quite a frequently encountered problem. And 10% of population is affected in their lifetime. 10% of all population of the world will be affected by the pain of acute appendicitis in their lifetime. But usually it is more common in children and adolescents, and becomes less frequent as the age progresses. But of course, it can present at any age. That is not a fixed criteria, but usually what has been seen is that it is more common in the adolescents and the children. And researchers advocate to point towards the fact that men appear to be more affected by acute appendicitis as compared to their female counterparts. Okay. Before we come to the diagnosis or anything, first we have to know the anatomy of the appendix to come to know uh, to diagnose it properly. So where is the appendix located? Appendix is located in the right eyelid fossa at the junction of small bowel and the cecum. Terminal ileum and cecal, ileocecal junction is the place where appendix is located. How to trace, if you can see in this diagram,
The smaller one, the general place is in the right iliac fossa. You can see the cecum and the appendix below it and the ileum. Here, the small bowel ileum comes and it attaches to the large dilated part of the large intestine known as the cecum. You, so how do we come to know the appendix, which is a worm-like projection at the base of the cecum, at the ileocecal junction. There you can see a longitudinal muscle fibers running along the uh, large intestine and the cecum. These are tinea coli. There are three tinea coli, uh, and you trace these tinea coli, and where the three tinea coli converge, that is the point of the base of the appendix. So here you can see the small intestine. It is coming into the cecum, and then after the colon, the ascending after the cecum, the ascending colon starts. But at the base, you can see at the junction of ileum and cecum, there is a finger-like projection which is known as the appendix. And these rostrations, one is visible, one would be at the side and the other one would be at the back. And they all come to converge at the base of appendix. So this is how you identify or look for the appendix, because in clinical scenarios, many a times it happens that uh, it's not a bookish picture when once you open the abdomen. You go in because of the inflammation. The omentum is usually there, which is the policeman of the abdominal cavity. It comes to contain or seal off the infection, which is an acute inflammatory process that is going on there. And many times it is seen that the adjacent loops of gut are also adherent to it because of the inflammatory process. Appendix, as I said, it's at the base of the cecum. It is a finger-like projection. Uh, it has many positions. You can see the one going down is pelvic position. Then this one, the number C, which is going behind, is retrocecal. Then this one, ये arrow तो नजर आ रहा होगा बच्चों को? Okay. Then then this one, which is going, is the pre-ileal. It is in front of the ileum, near the ileocecal junction. This is pre-ileal. The other one, this one, it is behind this ileum and attached at the base of the cecum. So this is post-ileal. And then there is another position which is going behind and upwards towards the liver. As I told you, it's the ileocecal junction is in the right iliac fossa, and if something goes up to it, this is called subhepatic. So the variations in variations in the position is one of the factors which makes the patient present with many variable scenarios of acute appendicitis. For example, if it is, look at the number 2. It will usually be lying on or going over the ureter, which is a retroperitoneal organ, and if it irritates inflammation, if due to the inflammation, if it irritates the uterus, the patient ureter, sorry. If it inflames the ureter, the patient presents with urinary symptoms, urgency, frequency, and he may also have hesitation. If the ileal part is more irritated, then the patient can present with profuse vomiting. And if the subhepatic part of if the appendix is in subhepatic position, it can present with early mass formation in that area. So the clinical presentation of acute appendicitis is variable. It is dependent upon what kind of where the tip of the appendix lies, where the position of the appendix is. What causes acute appendicitis? This is obstruction of the appendix by fecolith, mucus plug, foreign body, tumor, or secondary bacterial infection. These all can cause appendicitis. Usually fecolith or a foreign body or tumor can be appreciated by ultrasound, and
not in our part of the world, and but in America, they also do CT scan. CT scan is done to rule out any tumor that arises within the appendix or a secondary deposit. So what does feculith does? Feculith is a small concretion of the fecal matter which goes into the lumen of the appendix and causes obstruction of the lumen, which in turn causes obstruction to the drainage of the secretion and the mucus produced by the appendix, and this obstruction leads to stagnation, and stagnation leads to infection, and ultimately the patient presents to you with acute appendicitis. Again, like fecal, there can be ingested foreign body lodged in the lumen of the appendix. The lumen of the appendix can be blocked by certain tumors, which may be primary arising from the appendix itself, or they may be secondary deposits. Usually, uh, the bacterial infection ensues, and it's a mixed microbial kind of an infection which has multiple bacterial growth, and usually the commensal organisms of the GI tract are all are found there. So keeping in view this point, it is usually the second and third generation cephalosporins and metronidazole is added to combat the infections, because obviously the gut flora is going to be more predominant in this case, and it's a mixed picture, mixed microbial flora. So you give broad spectrum antibiotics according to uh, the situation, and once you take the appendix out, you send it for culture sensitivity, and if there is pus, you send it for culture sensitivity, and then you can always later on tailor your antibiotics according to the culture and sensitivity report. What is the Okay, now we have a scenario that the patient has presented to you in accident and emergency departments with pain in the right iliac fossa for 1 day. It is associated with tenderness in the right iliac fossa, associated with vomiting, constipation, and anorexia, and the patient has fever. So, history, clinical examination, and then usually the diagnosis of acute appendicitis is made on the history and examination, and you can confirm it by a few tests. So it's basically a clinical diagnosis. The, that emphasizes the importance of a detailed history and the clinical examination, which is the benchmark and the hallmark of diagnosis of acute appendicitis. The patient usually presents with pain. Pain has certain characteristics, the severity of the abdomen, and the pain is usually of short duration. The patient presents to you with 1 day or 2 day and the max 3 days history of pain. And the pain, as I mentioned earlier in the slide, according to the position of the appendix, the pain may vary. In a pelvic position of the appendix, there will be more pain low down in the abdomen. Towards there will be more dragging sensation in the pelvic area, and the patient will have abdominal crampy abdominal pain, which will be initially central. Why would it be central? Because the peritoneum, which is covering the abdominal cavity, covering of the abdominal cavity, has two layers: the inner visceral peritoneum and the outer parietal peritoneum. And the visceral peritoneum is uh, causes pain which is less defined. It is not very sharp, and you cannot locate it to a certain point. So initially, when the appendix is inflamed, it causes inflammation of the visceral part of the peritoneum. That is why the pain appears to be more central in position, more around the umbilicus, and then it changes and becomes more sharp and localized and move towards the right iliac fossa as the process of inflammation further progresses, because the parietal peritoneum gets involved, and parietal peritoneum localizes the pain more accurately. So ultimately, that is why in the typical scenario of acute appendicitis, the patient will present to you with pain around the umbilicus and general abdominal pain, which became sharp and demarcated and moved towards the right iliac fossa.
Okay, and the maximum tenderness will be at the McBurney's point. Now, what is McBurney's point? McBurney's point is the point which is evaluated to assess the acute appendicitis. This is maximal tenderness will be at the McBurney's point. And what is now McBurney's point? You can see this line. Okay, you draw a line from the anterior superior iliac spine to the umbilicus. Okay, from anterior superior iliac spine to umbilicus, you draw a line and divide it into three halves. The point between the medial 2/3 and the lateral 1/3 is the McBurney's point. This is the point of maximum tenderness in acute appendicitis because it's the point of ileocecal junction. Cecum being a fixed part of the GI tract, and it is found in the right iliac fossa, and the appendix is obviously at the base of the cecum. So this is the point which point of maximum tenderness, which is known as the McBurney's point. McBurney's point is also important because when we come to the operative procedure, this is the point where we give the incision perpendicular to this line. You go perpendicular to this line. Okay. I'll be coming to it in detail in the later slide. What are the symptoms? One symptom we have talked about is pain, which was central, more dull, less demarcated, which became more sharp, more marked, and shifted towards the right iliac fossa. So the additional symptoms, what other features will the patient have besides the pain? The other features will include nausea. The GI tract is disturbed, appendix is part of the GIT tract. So the patient will have nausea, will have vomiting. It is an acute inflammatory condition, so the patient will be pyrexial. And nausea, vomiting will also lead to anorexia because the bowel movements will be disturbed and the patient will not feel like having anything to eat. And if it is a pelvic kind of appendix, usually it can present with diarrhea as well. And as I told you earlier, if it is lying over the ureters, then it can present with acute urinary symptoms, acute symptoms of urinary tract infection. So nausea, vomiting, pyrexia, anorexia, diarrhea, urinary symptoms, these are all variable presentations. And you have to keep in mind this, the classic picture may not always be there of all these symptoms, especially in the young groups or in the elderly or in the chronically debilitated patient. The patient may have abnormal presentations. He may not have pyrexia. There may be no diarrhea. There may be no urinary symptom. And if it's in pelvic position, there will be more of diarrhea-like symptoms than nausea. Differential diagnosis. What are the things we have to keep in mind when we are discussing acute appendicitis? What else can be there? Obviously, all the intestine is getting its blood supply from the mesentery through which it is attached. The lymph nodes and the blood vessels run in the mesentery to supply the gut. And any infection of the gut leads to inflammation of the mesenteric lymph nodes, which in turn can lead to mesenteric, which results in mesenteric adenitis. So mesenteric adenitis can present with symptoms of similar to acute appendicitis. Then in children, intussusception. What is intussusception? Intussusception is telescoping of one segment of the GI tract into the other segment of the adjacent segment of the GI tract. Have you seen those telescopes the astronomers use to look at the stars? You see, it opens up and closes on its own. There are two pipe-like structures which go into each other. So this is what intussusception is, and it is more common, and typical presentation is in children. Then Meckel's diverticulum. Meckel's diverticulum
remember the rule of two. It's usually 2 centimeter, 20 centimeter from the iliocecal to 2 centimeter from the iliocecal junction, and it can also present with uh, clinical features of acute appendicitis. So, if you operate on a patient with clinical diagnosis, with their diagnosis made of acute appendicitis, and you find that the appendix is normal, it's not inflamed, it's not angry looking, then you have to look for these things. And especially you have to explore the distal segment of the ileum to look for this Michael's diverticulum, which is found in the ileum. Then Crohn's disease. Crohn's disease is an inflammatory bowel disease which involves the cecum. And obviously, if the cecum is involved, so the patient can present with symptoms of similar to that of acute appendicitis. Simple gastroenteritis, inflammation of the GI tract, can also be included in the differential diagnosis. Then again, we mentioned UTIs, urinary tract infections, ureteric colic, renal colic. They all can mimic the pain of acute appendicitis. Diverticulitis is usually a disease of the old people. आपने गाड़ी का आपने देखा कि टायर साइड से फूल जाता है, आउट पाउचिंग से निकल आती है. So these abnormal outpouchings are known as diverticulitis. Usually left side पे होते हैं, लेकिन right side पे भी की पेन के साथ भी आ सकते हैं, और ये ज़्यादा old age की disease होती है. And colorectal cancer itself, again, GI tract is involved, it can. Then among the gynecological procedures, ectopic pregnancy in the right ovary, in the right fallopian tube, right ovarian cyst, a pelvic inflammatory disease. These can all mimic the pain of acute appendicitis. तो जब भी आपने acute appendicitis का differential diagnosis देना हो ना, तो it's always better to आप इसको तीन में divide कर रहे differential diagnosis. So divide it into three. What is that? Number one, differential diagnosis in children, differential diagnosis in adults. में आप उसको भी दो में कर लो, तीन आ जाएंगे. Differential diagnosis in children, differential diagnosis in female, and differential diagnosis in adults. Young population में ज़्यादा intussusception, mesenteric adenitis, macular diverticulum, और UTIs और gastroenteritis से किसी भी एज में हो सकता है. ओल्ड एज में ज़्यादातर डायवर्टिकुलाइटिस है, डायवर्टिकुलर डिजीज़ है, क्रोन्स डिजीज़ है, इम्पैक्टेड स्टोन है, UTIs हैं जो कि ज़्यादा कॉमन होते हैं ओल्ड एज में. इन फीमेल्स हम बात कर रहे हैं, फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में ये होता है कि when they reach their menarche, the menstrual cycles can be irregular and they can be accompanied with dysmenorrhea and dyspareunia, यानी उनको पेन भी साथ हो सकती है. तो अगर राइट ओवरी में cyst बन रही है, रप्चर हो रही है, सिंपल cyst बन के रप्चर हो रही है, तो that can also cause pain in the right iliac fossa. Ectopic pregnancy, इसलिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है. और pelvic inflammatory disease, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली दिस इज मोर कॉमन इन फीमेल. तो pelvic inflammatory disease आई एम टॉकिंग. और अब आपने क्या किया, आपके पास पेशेंट आया है एक्सीडेंट इमरजेंसी में, आपने देख लिया कि उसने आके हिस्ट्री दी, पेन उसको अराउंड द अम्बिलिकस पहले हो रही थी, डल थी, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर के साथ एसोसिएटेड थी, और फिर बाद में वो राइट इलियक फोसा की तरफ शिफ्ट हो गई, और अब उसको फीवर भी और ये सारा कुछ है. हिस्ट्री पे आपने हाई सस्पेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस बना लिया. अब दूसरा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप या द नेक्स्ट स्टेप एज अ डॉक्टर वुड बी क्लिनिकल एग्जामिनेशन. अगर आप ये दो चीज़ें ठीक तरह कर लो, क्लिनिकल हिस्ट्री डिटेल ले लो और क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप डिटेल से कर लो, तो 99% of the times you can safely make a confirmed diagnosis of acute appendicitis. ठीक है, और उसको सपोर्ट करने के लिए फिर आप एक दो टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हो. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जनरल और स्पेसिफिकली आते ही ये बात ऐसे ही है. जनरल एग्जामिनेशन में क्या होगा, फीवर की वजह से, सेप्सिस ये इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट फ्लश होगा, रेडिश हुआ होगा, बुखार की वजह से फ्लशिंग ऑफ द फेस हुआ होगा. फीटर क्या होता है, बैड ब्रेथ इन द माउथ, बैड ब्रेथ की बीमारी होगी,
हम पहली बात करें कि नौजिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी हुई हुई है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है वो एराटिक हुई हुई है। तो उस एराटिक इंटेस्टिनल मोटिलिटी की वजह से आपको दैट कैन प्रोड्यूस फीटर। द पेशेंट विल बी डिस्ट्रेस्ड क्योंकि बुखार है, कॉन्स्टिपेटेड है और नॉजियस है, एनोरेक्सिक है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रेस में होगा। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन पेशेंट में थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ होगा अपने आप को आराम देने के लिए। उसने अपने एब्डोमिनल मसल्स को टॉट किया हुआ होगा ताकि वो नीचे इंटरनल ऑर्गन ज़्यादा हिले ना, क्योंकि उसकी मूवमेंट के साथ उसको पेन होगी। और फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो आप देखोगे क्या होगा, फीवर की होगा, टेम्परेचर रेज्ड होगा, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से पल्स रेट भी इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर में वेरी। एंड ये जनरल एग्जामिनेशन होगी। कमिंग टू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के जो बेसिक पार्ट्स हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, इस पे जो आप करोगे उस पे आपको मेन आइडिया होगा और कुछ उसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं। इंस्पेक्शन पे आप देखोगे कि पेन किधर है, कोई एबनॉर्मल स्कार मार्क है, पहले अपेंडिसेक्टमी का पहले तो नहीं अपेंडिक्स हुआ हुआ, कुछ और भी तो हो सकता है ना, पहले कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हुआ हो, पहले कोई राइट किडनी पे कोई प्रोसीजर हुआ हो, वो हो सकता है। कोई इंस्पेक्शन पे आप देखोगे कि पेशेंट की ब्रीदिंग कैसी है, डिस्ट्रेस्ड है नहीं है, पल्पेशन करोगे। अब इसके बाद पल्पेशन पे आओगे। पल्पेशन पे क्या होगा? ऑल 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन जो होते हैं उनके ऊपर आप उनको पल्पेट करते हो, पहले लाइट पल्पेशन करते हो लेजी एस बना के, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट से शुरू है, दूसरे क्वाड्रेंट पे, तीसरे पे, फिर नीचे वाले तीनों पे, फिर उसके बाद सबसे नीचे वाले तीनों पे। ओके, तो दिस इज हाउ यू पल्पेट। उसके बाद आप डीप पल्पेशन करते हो। डीप पल्पेशन पे आपको क्या मिलेगा, वो भी हर क्वाड्रेंट की करते हो। और हमेशा याद रखो, जब भी आप पल्पेशन कर रहे हो ना, तो आप हमेशा जो दर्द वाली जगह होती है जहाँ पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा होता है, उधर आप एंड पे जाते हो। सबसे पहले आप नॉर्मल जहाँ पेन नहीं हो रही होती, आप वहाँ पे पल्पेट करते हो, क्योंकि आपने क्या पहले ही पेनफुल जगह पे आपने पेशेंट को दबा के हाथ उधर लगा दिया, तो उसको तो दर्द इतनी होगी, बाकी एब्डोमेन तो आपको एग्जामिन ही नहीं करने देगा। लॉजिकल सी बात है। तो स्पेसिफिक साइज में आप क्या देखते हो? मैकबर्नीज पॉइंट की हमने बात की थी, राइट एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से अम्बलाइकस तक लाइन ड्रॉ करें तो उसका मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप दबाओगे, मैकबर्नीज पॉइंट है, इस पे आप दबाओगे तो पेशेंट को पेन होगी और रिबाउंड टेंडरनेस भी होगी। रिबाउंड टेंडरनेस क्या है? डीप पल्पेट करने के बाद पेशेंट, और आप जब पल्पेट कर रहे होते तो यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग टुवर्ड्स द आईज ऑफ द टुवर्ड्स द फेस ऑफ द पेशेंट, ताकि आप एक्सप्रेशन उसके देख सको कि उसको दर्द हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, उसको दर्द हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैकबर्नीज पॉइंट पे डीप पल्पेशन पे सबसे ज़्यादा टेंडरनेस होगी, और उसको उधर से आप अचानक हाथ छोड़ोगे ना, तो इंटरनल ऑर्गन मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो उसके साथ दोबारा पेन होगी, विच इज कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस। तो स्पेसिफिक साइंस एक्यूट अपेंडिसाइटिस के हैं, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस एंड रॉसिंग साइन। रॉसिंग साइन क्या है? रॉसिंग साइन है कि अपेंडिक्स राइट आइलिक फॉसा में है ना, यू palpate deeply in the left iliac fossa. What this will do is this will displace the gut contents towards the right, और अपेंडिक्स हो जाके जब गट कंटेंट्स टच गट टच करेगी तो देयर विल बी पेन इन द राइट साइड। लेफ्ट साइड आइलियक फॉसा में दबाने से पेन इन द राइट आइलियक फॉसा होगी। दिस इज कॉल्ड द रॉसिंग साइन, सॉस साइन। अपेंडिक्स पीछे करके पड़ा हुआ है, सीकम जो बिल्कुल पीछे रिट्रोसिकल सीकम जो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, उसके पीछे यूरेटर वगैरह पड़े होते हैं और सॉस मसल उन पीछे से गुजरा होता है। तो अगर एब्सेस फॉर्मेशन या एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो तो उसके सॉस मसल को भी थोड़ा सा इरिटेट किया होता है, और आप सॉस साइन इलिसिट कर सकते हैं। सॉस साइन क्या होता है? यू एक्सटेंड एट द हिप जॉइंट, एक्सटेंड द लेग एट द हिप जॉइंट। राइट लेग को आप पेशेंट को साइड पे थोड़ा सा लेटे हुए को लेफ्ट साइड पे करवट देके आप उसकी राइट लेग को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो द पेशेंट उसका सॉस मसल के हिलने की वजह से, टॉट होने की वजह से उधर आपको अगेन पेन इन द राइट आइलिक फॉसा आएगी, व्हिच इज कॉल्ड द सॉस साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन क्या है? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल की इरिटेशन की वजह से हो सकता है। यूजुअली ये पेल्विक पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स में ज्यादा होता है, जब अपेंडिक्स के टिप जो है नीचे की तरफ टुवर्ड्स द पेल्विक कैविटी हो।
ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का ये है कि आप हिप जॉइंट को थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे और इंटरनली रोटेट करेंगे. Flex the hip joint and internally rotate it. So this will cause pain in the right iliac fossa, which is called the obturator sign. लेकिन सॉ साइन ऑपरेटर साइन ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस एकेडमिक एंड थेरेटिकल व्यू पॉइंट से है. ज़्यादा टेंडनेस ऑफ मैकबर्नीज पॉइंट, रॉसिंग साइन, ये ज़्यादा इलिसिट होते हैं. और आगे हम जाएंगे लेटर ऑन द स्लाइड्स विल कम टू टेबल के जिसमें हम इनकी सबकी नंबर्स भी देते हैं इनको to make a diagnosis of acute appendicitis with surety. और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आखिर में लिखा हुआ है एब्डोमिनल मास. ये क्या? एक बंदा है, उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ, पेन इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्लासिक सिम्टम्स नहीं थे, वो घर में या क्वैक से या कहीं और भी दवाइयाँ लेके ट्रीट करता रहा, और अब वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स वेंट इनटू अ क्रॉनिक फेज, जिसकी वजह एक्यूट की वजह थोड़ा बहुत लीकेज हुआ. क्योंकि जब गट का इन्फेक्शन हो, गट की इन्फ्लेमेशन हो, तो गट बड़ी फ्राइबल हुई भी होती है. देयर कैन बी लीकेज ऑफ कंटेंट्स, स्पिलेज ऑफ कंटेंट्स, एंड देयर कैन बी परफोरेशन. जिस तरह फिकोलिप था, हमने बात की थी, वो उसने अपेंडिक्स के ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से आर्टीरियल तो प्रेशर में खून आता रहा, वीनस रिटर्न इम्पीड होती रही, करते 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 अल्टीमेटली क्या हो कि वीनस रिटर्न जा ही नहीं रही, तो वो निक्रोज हो गया. निक्रोज हो जाएगा तो परफोरेट हो जाएगा. तो जब एब्डोमिनल परफोरेशन होती है तो आपका मोमेंटम जो होता है और जो सर्टन और इर्द गिर्द की जो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन्स होती हैं वो आके उस एरिया को वॉल ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि उधर एक गुच्छा सा बना देते हैं ताकि पूरे पेरिटोनियम में इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो. तो विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन एब्डोमिनल मास. और एब्डोमिनल मास आपको राइट एलिक फॉसा में पल्पेट करके फील भी हो जाता है. और इसीलिए कहते हैं कि जब आप इवन एट द ऑपरेटिंग टेबल जब आप पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर देते हैं तो उसके बाद तो पेशेंट तो सो गया, एनेस्थीसिया हो गया, तो उसको तो नहीं पता, एब्डोमिनल मसल्स भी रिलैक्स हो गए. तो तब आप ऑपरेट इंसिजन देने से पहले आप ज़रूर पल्पेट करके देखें कि उधर अपेंडिकुलर मास तो नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर अपेंडिकुलर मास बना होगा तो आपका इंसिजन साइट आपकी टोटली चेंज हो सकती है, आपका ऑपरेटिंग प्लान आपका चेंज हो सकता है. इसलिए ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है. वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या चेंज हो सकता है. ठीक है. कुछ अब हमने क्लिनिकल एग्जाम हिस्ट्री डिटेल ले ली, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया, हमने एक डायग्नोसिस बना लिया ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस. इसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ टेस्ट करा लेते हैं. ठीक है. वही वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था, द फर्स्ट सेंटेंस इज प्रीडोमिनेंटली इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस मेड अपॉन डिटेल्ड एंड थॉरो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. तो 90 to 95% of the times you can make a diagnosis of acute appendicitis with surety. दूसरे आप कुछ टेस्ट करा लेते हो. WCC वाइट सेल काउंट, आइटिस है ना, इन्फेक्शन है लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, तो वाइट ब्लड सेल्स बड़े होंगे, दे विल बी ल्यूकोसाइटोसिस. और न्यूट्रोफिल काउंट स्पेसिफिकली ज़्यादा बड़ा होगा विच विल गिव यू इंडिकेशन ऑफ एक्यूट प्रोसेस गोइंग ऑन, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन. यूरिनरी सिम्टम के साथ पेशेंट आ सकता है, यूरिनरी अर्जेंसी के साथ, हेजिटेंसी के साथ आ सकता है, और इसलिए आपने यूटीआई के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूरिन कंप्लीट करा लेते हैं आप. ठीक है. प्रेगनेंसी टेस्ट जस्ट टू इन केस ऑफ फीमेल जस्ट टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एनी अदर गायनेकोलॉजिकल पैथोलॉजी. फीमेल्स में एक और भी चीज़ होती है, उसको कहते हैं मिटलशमर्स. मिटलशमर्स इज मिड साइक्लिकल पेन विच कैन मिमिक द पेन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस. और जब ये सारा कुछ आप कर लेते हो, देयर इज अ स्कोरिंग सिस्टम नोन एज एल्वराडो स्कोरिंग सिस्टम, जो जिसमें आप करते हो. तो अगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज एल्वराडो स्कोरिंग सिस्टम. दिस इज एल्वराडो स्कोरिंग सिस्टम. इसका जो है ना, अगर ये हर चीज़ को ना एक एक पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ दो चीज़ों को 2 पॉइंट दिए हुए, एक ल्यूकोसाइटोसिस को दिया हुआ है और एक राइट आइलिक फॉसा में टेंडरनेस को. बाकी इसका जो रटा मारने की जो चीज़ है ना, वो द वर्ड इज मैंट्रल्स, MANTRELS, मैंट्रल्स, MANTRELS. M से माइग्रेटरी पेन इन राइट आइलिक फॉसा, यानी कि पहले सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में अम्बिलिकस के पास हुई और राइट आइलिक फॉसा में चली गई. अगर ये वाली कंडीशन के साथ पेशेंट आए तो यू विल गिव हिम 1 पॉइंट.
Again, if it is accompanied with anorexia, then you will give it another 1 point. Nausea, vomiting साथ accompanying है, another 1 point. Right iliac fossa tenderness है तो 2 points. Rebound tenderness का भी 1 point है, fever का 1 point है, ब्लड आपने कराया, WCC की हमने बात की था, एलिवेटेड वाइट सेल काउंट, तो ल्यूकोसाइटोसिस हो तो उसके भी 2 points हैं. 2 points सिर्फ राइट एलिक फॉसा में टेंडरनेस के हैं और ल्यूकोसाइटोसिस के हैं. एंड देन वही न्यूट्रोफिलिया, अगर ज्यादा न्यूट्रोफिल होंगे तो उसका भी 1 point है. शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो क्या बना? M से माइग्रेटरी राइट एलिक फॉसा पेन, A से एनोरेक्सिया, N से नोजिया, T इसको इसलिए कहते हैं कि राइट एलिक फॉसा नहीं को टेंडरनेस, obviously right electric fossa में होगी ना, MANT for tenderness, R for rebound tenderness. फीवर के लिए एलिवेटेड टेम्परेचर वो वर्ड यूज करते थे, जिसलिए उन्होंने उसका बनाया था मेंट्रल्स, RE से एलिवेटेड टेम्परेचर, L से ल्यूकोसाइटोसिस और S से शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो मेंट्रल्स, MANTRELS. और अगर ये सारा आप करोगे ना, टोटल स्कोर बन गया 10 पॉइंट्स का. अगर आपने पेशेंट के सारे हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर ली, एंड यू हैव अ स्कोर ऑफ लेस देन 5 और इक्वल टू 5, देन देयर इज अ स्ट्रांग सस्पिशन दैट patient is not suffering from acute appendicitis. There is something else going on in the abdominal cavity. Then you direct your efforts to find the other causes which can mimic this acute appendicitis. ठीक है? और अगर score of 7 or more, it is strongly predictive of acute appendicitis. ठीक है? In अगर आप 5 to 6 आ रहा हो, अनइक्विवोकल हो, तो आप सीटी स्कैन कर सकते हो. लेकिन पूरी दुनिया में, अमेरिका में एज रूटीन वो सीटी स्कैन करते हैं फॉर दिस. बाकी इंग्लैंड में और बाकी यूजुअली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं, एज इट्स नॉट अ मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन टू डू सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है? तो और ये इसलिए किया जाता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ नेगेटिव लेप्रोटमी, ताकि जिनको एक्यूट अपेंडिसाइटिस नहीं है उन्हें एक्यूट अपेंडिसाइटिस बना के ऑपरेट ना करते रहें. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि आपने पेशेंट को खोला एक्यूट अपेंडिसाइटिस बना के, यू डिड द लेप्रोटमी, यू वेंट इन द पेरिटोनियल कैविटी और उधर गए तो जाके आपको नॉर्मल अपेंडिक्स मिल गया. आपने दूसरी पैथोलॉजीज भी देख ली, सारा कुछ कर लिया, तो लेकिन बहरहाल व्हाटएवर द केस, अपेंडिक्स नॉर्मल है तो आप क्या करोगे? विल यू टेक द अपेंडिक्स आउट और नॉट? अपेंडिक्स निकालोगे या नहीं निकालोगे? दिस इज डिबेटेबल प्रोसेस, ऑनगोइंग डिबेटेबल प्रोसेस रादर. ज़्यादातर लोग एडवोकेट करते हैं कि पेपर्स में भी ये छाया हुआ है कि द अपेंडिक्स शुड बी टेकन आउट, अपेंडिसेक्टमी कर देनी चाहिए, बिकॉज आपने हमने बात की थी ना कि 10% ऑफ पॉपुलेशन विल हैव एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन देयर लाइफ टाइम. तो आपने एक राइट आइलिएक फॉसा मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर टिपिकल आपने एक्यूट अपेंडिसाइटिस का इंसिजन भी दे दिया, सारा कुछ कर लिया, अंदर के अपेंडिक्स नहीं निकला तो आप निकाल लो उसको, ताकि सब्सिक्वेंटली कोई ये साइन उधर स्कार दे के ना कि इसका अपेंडिक्स निकला और आपने निकाला ना हो. और दूसरा ये कि बाद में जब हो जाएगा तो फिर दोबारा जाना, उसी जगह से जाना, इट विल बी डिफिकल्ट. सो इट इज एडवोकेटेड, मोस्टली इट इज एडवोकेटेड कि अगर आपने किया है और आपको नॉर्मल अपेंडिक्स मिला है तो फिर भी आप यू लुक फॉर द कॉज, ऑब्वियसली यू फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम वाज, और आप अपेंडिसेक्टमी भी साथ कर देते हो. ठीक है? रेडियोलॉजी में आप क्या करते हो? कौन सी रेडियोग्राफिक आप इन्वेस्टिगेशंस करते हो? रेडियोग्राफिक में आप प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करते हो. प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे में आपको क्या होगा? अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है तो विद इन द इंटेस्टाइन आपको एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे. पानी नीचे रह जाता है, हवा ऊपर चली जाती है, ऐसे ही है. पानी वाइट कलर का आएगा, एयर ब्लैक कलर की आएगी इन द एक्सरे, and there will be multiple air fluid levels अगर intestinal obstruction हुई है because of acute appendicitis या किसी और रीजन की वजह से. Then you do the ultrasound appendix, which is routinely done. It is very sensitive and in locating in making the diagnosis of acute appendicitis. इसमें आपको क्या मिलता है? Appendicular wall की thickness हो सकती है due to inflammation. पेरीअपेंडिकुलर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, जहाँ भी इन्फेक्शन हो तो एक्सिडेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आते हैं तो जिसकी वजह से पेरीअपेंडिकुलर फ्लूइड हो सकता है.
सीकोलिथ अगर अपेंडिकुलर ल्यूमन के अंदर है तो वो भी आपको नज़र आ सकता है। अपेंडिकुलर मास फॉर्मेशन है तो वो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल, पेल्विस और रीनल ट्रैक से करते हो ताकि आप सारी पैथोलॉजीज को देख लो। ये जिनके डीडीज हमने बात की है ना, जिनके ज़्यादा आपको शक हो रहे हैं, उनको सबको देखने के लिए। और एंड अगेन आई मेंशन सीबीसी आप कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, ये तो भी रेडियोलॉजी की बात करते हैं। सीटी स्कैन आपको मैंने बताया कि अगर एम्बिग्विटी है, इफ़ यू आर नॉट टू क्लियर अबाउट इट, you can have CT scan done, but it is for acute appendicitis, it is only done routinely in United States, not in other countries. Appendicular mass, coming to the appendicular mass, हमने पहले छोटा सा जिक्र किया था, what is an appendicular mass? Untreated appendix रह गया, वो हम बात करते हैं extravasation of fluid and contents हुआ, inflammatory mediators है, उधर inflammatory process हुआ, पेरिटोनियम ने दरा के उसको वॉल ऑफ करने की कोशिश की, एडजेसेंट गेट लूप साथ उसके स्टिक करके, एंड दिस ऑल जंबल मिक्स अप an appendicular mass in an untreated or undiagnosed case of acute appendicitis. इसलिए जाहिर सी बात है टाइम लगे तो प्रेजेंटेशन डिलेड होगी। हमने विद इन 24 टू एक दिन से 3 दिन के अंदर अंदर एक्यूट की प्रेजेंटेशन थी, इसकी यूजुअली लेट प्रेजेंटेशन होगी, 5-6 दिन हफ्ते के बाद पेशेंट प्रेजेंट करेगा। रेडियोलॉजी में भी हेल्पफुल, लेकिन क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे आपको एपेंडिकुलर मास नज़र आ जाएगा, लेकिन इसको क्रोन्स डिजीज से डिफरेंशिएट, उसमें भी मास फॉर्मेशन मासेस बने हुए होते हैं, करना मुश्किल होता है, लेकिन हिस्ट्री विल बी द मेन टूल विच विल हेल्प यू डिफरेंशिएट एक्यूट अपेंडिसाइटिस फ्रॉम क्रोन्स डिजीज। अब अपेंडिकुलर मास आ गया तो इसमें आप एक्यूटली आप ऑपरेट नहीं करते हो, इंटरवल अपेंडिसेक्टमी करते हो। एक्यूटली आप क्यों नहीं ऑपरेट करते हो? इसलिए आप एक्यूटली ऑपरेट नहीं करते हो कि अपेंडिक्स और गट वॉल इन्फ्लेम्ड है, ठीक है ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में चली गई है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस है, इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस है, और आपकी कोशिश होती है कि आप एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स वगैरह देके उसका मास को पहले रिड्यूस करो और उसके बाद फिर आप करते हो। तो यूजुअली आप इंटरवल अपेंडिसेक्टमी करते हो, आप 2-3 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक्स देते हो, सेफ्लोस्पोरिन, मेट्रोनिडाजोल और साथ पेन किलर्स, एंटीपायरेटिक्स और वो सारा दे के आप सीरियल अल्ट्रासाउंड करते रहते हो और आप इंटरवल अपेंडिसेक्टमी करते हो फॉर द मास। हाँ, आप एक्यूटली आपको तब करना पड़ता है अगर अपेंडिकुलर अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाए, सिम्टम सेटल ना हो रहे हो या वर्सन हो सके जाए या परफोरेशन हो जाए, तो देन यू हैव टू गो इन देयर एंड देन वही बात नीचे भी लिखी है, द पेशेंट डिटेरिएट्स देन यू थिंक ऑफ लेप्रोटमी, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद दिस रिजीम। ट्रीटमेंट क्या है? अब इफ देयर इज क्लिनिकल अनसर्टेनिटी तो फिर आप करते हो, ऑब्जर्व करते हो, एडमिट करते हैं पेशेंट को, ऑब्जर्व करते हैं, पेन किलर्स देते हैं, आईवी फ्लूइड देके रिहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि मैं नॉजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया से यूजुअली पेशेंट डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, फरी टंग हुई भी होती है उसकी, कोटेड टंग हुई भी होती है, एंड यू असेस पेशेंट डेली। और दूसरा रेडियोलॉजिकल, और मैंने आपको बताया आप एंटीबायोटिक्स देते हो, कंसेंट वगैरह लेते हो थिएटर जाने के लिए, और 2 तरह की एपेंडिसेक्टमी देती है, ओपन प्रोसीजर के साथ की जाती है, जो कि मैंने आपको बताया मिड बेनिस पॉइंट पे इंसिजन दी जाती है परपेंडिकुलर, या आप लैप्रोस्कोपिक कर सकते हो, विच इज द न्यू मोडालिटी। ट्रेडिशनल अपेंडिसेक्टमी क्या होती थी? देयर आर सर्टेन इंसिजन्स हैं में लैंस है, ग्रेड आयरन है, रदरफोर्ड मॉरिसन है, मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉरिसन है, दे आर डिफरेंट टाइप्स। इसमें आप देखो ये जो नीचे जा रही है ना, ये आपकी ग्रेड आयरन है, मसल कटिंग है। जो मोर स्किन क्रीज आपकी है दिस वन, ये लैंस इंसिजन है। ये यूजुअली आपकी नेचुरल बॉडी क्रीजेस के अलोंग होती है, दिस इज मोर कॉस्मेटिकली बेटर, और इसमें आप करते हो मसल स्प्लिट करते हो, वेयर एज इन दिस वन यू कट द मसल्स, एंड देन अगर अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बिगड़ा, अपेंडिकुलर मास फॉर्मेशन, तो फिर आप मिड लाइन लेप्रोटमी वूंड से खोलते हैं, ठीक है। प्रिफर्ड इज लैंस। लैंस में ये है कि मसल स्प्लिटिंग है, मसल कटिंग नहीं है, इसलिए हर्निया बनने के कम चांसेस हैं, पेन कम होती है, रिकवरी जल्दी होती है, एस्थेटिकली बेहतर है। नॉट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे दे हैव टू wear short clothes, bikinis and all, and they have to go to the beaches, so they don't usually it's not preferable to have a scar which is visible, तो ये बिकिनी लाइन में, बिकिनी क्रीज के अंदर छुप जाता है, तो इसलिए दिस इज प्रेफर्ड। और दूसरा ऑब्वियसली जो एडवांटेज था वो था कि दिस इज मसल स्प्लिटिंग, नॉट मसल कटिंग।
अपेंडिसेक्टमी होता क्या, मैकबर्नी पे आपने इंसिजन दिया, पहले स्किन आया, सबकुटेनियस टिश्यू आया, फैट आया, फिर पहले फाइबर जो आप इनकाउंटर करोगे मसल फाइबर रनिंग डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ये है एक्सटर्नल ओब्लिक। तो उसके बाद आपके पास आएंगे मसल फाइबर रनिंग डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो है इंटरनल ओब्लिक। और उसके बाद मसल फाइबर जाएंगे रनिंग ट्रांसवर्सली विच इज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। तो इन सबको आप स्प्लिट करते हुए नीचे जाओगे तो आपकी आखिरी कवरिंग आ जाएगी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को आप जेंटली पिक करोगे, छोटी सी आर्टरी के एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे छोटी सी उसकी कोना सा पकड़ के आप उसको ऊपर उठाओगे ताकि नीचे से इंटेस्टाइन ना साथ आ जाए, या उसको आप ना पकड़ लो और उसको निक दोगे तो आप देन यू गो इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में अब आप पहुंच गए तो अब मैंने आपको बताया था कि सीकम इज द फिक्स स्ट्रक्चर राइट एलिक फॉसा में होता है और वहाँ अपेंडिक्स आप अब जाके ढूंढिए। सीकम आपको नजर आ जाएगा, उसकी हॉस्ट्रेशंस जो हैं उनके ऊपर जो टीनिया को ले जा रहे थे, 3 लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस बैंड मस्कुलर बैंड जो थे, उनको आप ट्रेस करते हुए जाओगे, वो तीनों जहाँ जाके कन्वर्ज हो रहे हैं ना, वो दैट इज द बेस ऑफ द अपेंडिक्स। वहाँ जाके आपको अपेंडिक्स मिल जाएगा। अब ये देखो, दिस इज अपेंडिक्स और उसके साथ उसकी अपनी मेजेंट्री है। ये जो सारी है ना, ये इसकी मेजेंट्री है। मेजेंट्री क्या होती है? मेजेंट्री के अंदर इसकी लिम्फ नोड भी होती है, ब्लड वेसल्स रन कर रही होती हैं, पर्टिकुलर आर्टरी और वेन्स रन कर रही होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस मीजो अपेंडिक्स को आप अलग से टाई करते हो, इसके अंदर विंडो बनाते हैं और इसको बांध देते हैं कि आप ब्लड सप्लाई ख़त्म कर दी। पहले इसको अलग से बांध दिया, फिर बेस ऑफ अपेंडिक्स पे जाके आपने बेस को बांधा और ऊपर से काट दिया। ये रहा पिक्चर, बेस को काट बांधा, पहले यहाँ बांध दिया, इस पिक्चर में क्लियर नहीं लेकिन यहाँ बांध दिया और उसके बाद काट दिया तो आपकी अपेंडिसेक्टमी होगी। ओके, इसमें ज़रा ज़्यादा क्लियर है कि ये आपने पहले नीचे बांध दिया और फिर ऊपर से पकड़ के उसके ऊपर काट दिया इसको, लेकिन उससे पहले आपने मीजियो अपेंडिक्स को टाई करें ताकि अगर आप डायरेक्ट अपेंडिक्स को काट देंगे ना तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना, उनमें मसल फाइबर होते हैं तो वो रिट्रैक्ट कर जाती हैं और फिर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, आपको मिलती नहीं है। इसलिए पहले मीजियो अपेंडिक्स आप टाई कर दो, बी ए सेफ सर्जन, और उसके बाद आप बेस ऑफ अपेंडिक्स को टाई करने के बाद अपेंडिक्स को काट दें एंड अपेंडिसेक्टमी इज डन। एंड द अदर प्रोसीजर which is gaining more popularity is the laparoscopic appendicectomy। इसमें ये होता है कि एक बड़े इंसिजन की बजाय छोटे छोटे 5 और 10 मिलीमीटर्स के लोअर एब्डोमेन में 4 फुट 3 फुट दोनों मेथड होते हैं, वो इंसिजन दिए जाते हैं और कैमरा के थ्रू, जिसे इधर हमारे यहाँ उर्फ आम में ओपीडी में आप जाओ तो पेशेंट कहते हैं कि लेजर से ऑपरेशन कराना है, ये कैमरे वाला ऑपरेशन कराना है। दिस इज व्हाट लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर इज। ये लेप्रोस्कोपी का है, दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, आई वोंट बी टचिंग ऑन इट क्योंकि आप बाद में आओगे फाइनल ईयर में तो देन आई गेस यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वंस यू सी इट। ओके, अब अपेंडिसेक्टमी हो गई। अपेंडिसेक्टमी के बाद आपने क्या करना है? आपने अपेंडिसेक्टमी तो कर दी, इन्फेक्टिव प्रोसीजर चल रहा था, सारा कुछ था, तो वूंड का इन्फेक्शन होने का भी चांस है क्योंकि अपेंडिक्स आपने उसी वूंड में से निकाल दिया तो पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर पस हो तो मैंने आपको बताया था कल्चर एंड सेंसिटिविटी भिजवा दें और जब तक उसकी रिपोर्ट यूजुअली टेक्स 3 days टू कम, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करा देते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल जीआई फ्लोरा, इसलिए आप सेफ्लोस्पोरिन और मेट्रोनिडाजोल वगैरह देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं, रीहाइड्रेट करते हैं, बिल्डअप करते हैं पेशेंट को, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल सिंगल डोज देते हैं अगर सिर्फ इन्फ्लेम्ड हो, अगर प्यूरलेंट एक्सुडेटिवली साथ हो तो 48 आवर्स के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, अगर परफोरेटेड हो या मास फॉर्मेशन हो तो 5, बट दीज यूजुअली वेरी। लेकिन आपने एंटीबायोटिक और बाद में ऑपरेशन के बाद आपने रिहेबिलिटेशन प्रॉपर करनी होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर लो। शॉर्ट टर्म में होती है कि ब्लीडिंग हो सकती है, ड्यूरिंग प्रोसीजर पहले कर लेते हैं। ऑपरेट आप कर रहे हैं ना, ऑपरेशन से पहले आपने पेशेंट को बेहोश करना है, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट बेहोश हो गया, आपने काट दिया तो आपकी एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकते हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, स्पिलेज ऑफ द इन्फेक्शन टू अदर एरियाज हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए इसमें पेल्विक एब्सेस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट एक्स्ट्रावेटेड फ्लूइड होगा वो जाके पेल्विक कैविटी में इकट्ठा होगा
और वहाँ जाके ये एब्सेस फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? आपने ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपने मीजोपेंडिक्स में मैंने आपको बताया जिसमें ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं, अपेंडिक्स की पेंडिकुलर आर्टरी रन कर रही है, उसको आपने टाई किया लेकिन आपने सिक्योर नॉट नहीं सही तरह सिक्योर की, तो स्लिप अगर हो गया आपका लाइगेज, स्टम्प लाइगेशन लेके हुई तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। शुरू में अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बिकॉज ऑफ द पेन एंड दिस ऑपरेटिव प्रोसीजर एंड द मैनिपुलेशन यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। सब हेपेटिक वाली पोजीशन में अगर अपेंडिक्स हो तो बाद में डायफ्राम के पास तक जाकर उधर पेंडिकुलर मास बना होता है, कैन रिजल्ट इन न्यूमोनिया। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के भी चांसेस होते हैं, ये जरा स्लाइटली ज़्यादा होते हैं लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में एज कम्पेयर टू ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, सॉरी अपेंडिसेक्टमी। लॉन्ग टर्म में क्या, अगर आपने वो मसल जो हमने तीन बात की, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस, इनमें एक्सटर्नल ओब्लिक जो है वो सबसे ज़्यादा टफ है, उसका एपिनेरोसिस जो है, और वो ही मेन डिफेंस है अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ हर्निया। तो अगर उसकी रिपेयर सही ना हो तो वहाँ हर्निया बनने का चांस होता है। एडिशंस, एडजेसेंट गट ट्यूब्स आपस में फाइब्रोसिस और स्कारिंग के साथ जुड़ जाते हैं, विच इज कॉल्ड एडिशन, वो लेट कॉम्प्लिकेशन में होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में यूजुअली 24 to 48 एक दो दिन बाद आप ऑपरेशन के पेशेंट को घर भेज देते हो विद एडवाइस के क्या क्या अलार्मिंग फीचर्स हैं कि अगर उसको वॉमिटिंग आ रही हो, फीवर ना रुक रहा हो, पेरिटोनिज्म के दोबारा फीचर्स आ रहे हैं तो वो वापस आ जाए। और अगर पेंडिकुलर मास बना हो या परफोरेशन हुई भी हो, स्पिलेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स हुए में हो, कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस हो तो द हॉस्पिटल स्टे में वेरी, a few days to a few weeks तक जा सकता है। यूजली 2 हफ्ते में बंदा पेरेंट अपने काम पे वापस चला जाता है, काम शुरू कर देता है, और अगर और भी कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स ना हो तो अर्ली रिटर्न टू वर्क होता है। लेप्रोस्कोपिक का एक ये भी फायदा है कि एक हर्निया बनने का कम चांस है, एक हॉस्पिटल स्टे आपका कम है, एक तीसरा उसका एडवांटेज ये है कि यू कैन रिटर्न टू वर्क अर्लियर, लेस पेनफुल, लेस हर्निया फॉर्मेशन चांसेस। ओके, डिसएडवांटेजेस लेप्रोस्कोपिक के क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसका लर्निंग कर्व है, आप क्या टीवी की तरफ देख रहे हो और दूसरी तरफ अपना हाथ करके आप ऑपरेट कर रहे हो पेशेंट पे, तो इट टेक्स सम लर्निंग। और दूसरा है कि एक्सपर्टीज इसको चाहिए होती है, और इसमें डीवीटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया डिसएडवांटेजेस ये हैं इसके। ठीक है, दिस इज ऑल द बेसिक्स अबाउट एक्यूट अपेंडिसाइटिस। आपको जो आना चाहिए ज़्यादा एट द लेवल ऑफ थर्ड ईयर, यू शुड नो कि व्हाट द पेशेंट्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट विद, what investigation you should be what examination you should be doing in your clinical examination, what you should be looking for, and then what test you should be doing। और ये एल्वराडो स्कोर जो है ना मेंट्रल्स वाला, ये इसका रटा मार लो, सारी उम्र काम आएगा। ओके, that's it for the lecture of today, and I guess we will be discussing this topic again in 4th year and in final year, and you will be getting these in your test when you come to the surgery in final year. Okay, best of luck. Apply safe practices, keep yourself safe and everyone around you safe, and good luck. Thank you.